इसमें मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू चेक whether the file name .sql is there or not. File name .sql you have to check. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो s1.sql. अगर यहाँ .sql नहीं आता है means it becomes the text file. कंपल्सरीली यहाँ पर आना चाहिए because आप फाइल को नाम पहले ही दे रहे हो and PLSQL file gets stored with the extension .sql. This is your title bar and file name is nothing but the title of the document which should be shown on the title bar. So s1.sql should be there. इसके अलावा हमने देखा था कि there is syntax to write the program. First section is declare. यहाँ पे आप whatever variables you have to declare in this declare section. Then begin. Your executable statements are come in the begin and end block. Your executable statements come in begin and end block. Every statement completed with semicolon. Then output show करने के लिए which is the statement? For output which is the statement? VMS underscore output dot put underscore line. Underscore line. Right? This is the output statement. Suppose I say hi and semicolon. Okay. Now file save and file exit. Now file is saved. You have to receive this content in the buffer, and for that there is command called as get s1 and then says slash to run the program. You will get the output over here, that is hi. Right? ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था. इसके अलावा हमने क्या देखा था? ये हो गया नॉर्मल जनरल, यू कैन से दैट सिक्वेंशियल कोड. देन इसके अलावा हमने देखा था इफ देन. देन वी स्टार्ट विथ आइटरेटिव कंट्रोल. आइटरेटिव कंट्रोल में हम लोगों ने व्हाइल ऑलरेडी देखा था. व्हाइल लूप हमने ऑलरेडी देखा था. याद है? डू यू रिमेम्बर द थिंग्स? क्या याद नहीं है? हमने व्हाइल लूप देखा था लास्ट टाइम, याद है? फॉर लूप बचा था बताने का. सो बाय टुडे आई एक्सप्लेन यू फॉर लूप लॉजिक. आई अज्यूम दैट कि यू ऑलरेडी नो द लॉजिक. I just give you the syntax and how we write the code in that. ठीक है? Now suppose I want to print the numbers from 1 to 20 using for loop. I want to print the numbers from 1 to 20 using for loop. So how to write that loop? For का syntax कैसे होता है? That I show you. This is the syntax of for. Word document दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ मैम दिख रहा है. हाँ. For variable, यहाँ पे variable का नाम आएगा. Then in. For variable in. Then reverse. अगर आपको reverse में चाहिए तो यहाँ पे आप लिखोगे reverse and then start and end. तो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो for variable for I in 1 double dot 10, then loop whatever action you have to perform and end loop. For variable in, then reverse, अगर reverse में चाहिए तो reverse, start, double quotes, double dot, end, loop, action and then end loop. This is the syntax for the for loop. Now suppose I want to print the number from 1 to 10. So I just take one file, ed s1 में भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. ed s1. Now declare एक वेरिएबल हमें चाहिए. Suppose I say I number of 2. का साइज हमने दे दिया number of 2. Now begin. क्या प्रिंट करना है मुझे?
numbers from 1 to 10. लूप कैसे आएगा? फॉर आई इन 1 डबल डॉट 10, for I in 1 double dot 10 loop, then whatever actions we have to perform, dpms output dot put line I, and then end loop. Loop end किया, then we end the program. फाइल से अब अगर ये फाइल को हमने गेट s1 नहीं किया और डायरेक्ट रन किया तो क्या होगा? If I directly run this file, get s1 नहीं किया, डायरेक्ट रन किया तो क्या होगा? इसका प्रीवियस आउटपुट आएगा जो भी बफर में सेव है. अभी हमने चेंजेस किए, so we have to call this file again, or in short you can say you can compile this file again. Get s1, no error are there, so I just say run और slash r या फिर slash, दो में से कोई भी कमांड दे सकते हैं. There is a error. Encounter the symbol begin when expecting one of the I is equal to. हाँ, क्या एरर है? क्या एरर है? सेमीकोलन नहीं दिया, सेमीकोलन नहीं दिया, वो एरर है. क्या नंबर्स प्रिंट फ्रॉम 1 to 10? ये अगर मुझे रिवर्स में चाहिए 10 to 1 तो क्या चेंज करेंगे हम लोग? I just say eds1 and here I say I in reverse. ये बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता है. नॉर्मल प्रोग्रामिंग यू कैन परफॉर्म. अगर आप बोलोगे कि सी के जैसा एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हम लोग इसमें करेंगे तो लिटिल बिट डिफिकल्ट, because it is not purely programming language. It just give you the procedural concept. Okay, numbers print from 10 to 1. चेंज क्या किया हमने? यहाँ पे रिवर्स किया. ये रेंज हमने वैसा ही रखा है, स्टार्ट एंड एंड. And I just put over here reverse. ठीक है? Clear? Suppose I want to print the sum of first 10 numbers. Suppose I want to print the sum of first 10 numbers. What should be the logic? क्या चेंज करेंगे? इसी प्रोग्राम में करती हूँ मैं. eds1. क्या करना है प्रोग्राम में? मुझे फर्स्ट 10 नंबर्स का सम प्रिंट करना है. तो लूप मेरा 1 से 10 तक चलने वाला है. राइट नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू? व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? लूप में क्या करना पड़ेगा मुझे? लूप में क्या करना पड़ेगा मुझे? उसमें सम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ना. वेरिएबल लेना पड़ेगा सम. हाँ, और उसको सम प्लस आई करेंगे तो हो जाएगा. तो आई टेक वन वेरिएबल sum. सम हम वेरिएबल यहाँ नहीं लेंगे बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड फंक्शन. ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेक वन वेरिएबल s ऑफ टाइप नंबर ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 0. इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट टेक्स द गार्बेज वैल्यू. s number of 2 that is equal to 0. Then I say s is equal to s plus I. Semicolon. Then ये जो स्टेटमेंट है ये कहा जाएगा? लूप के बाहर जाएगा. सम से एक ही बार प्रिंट होगा ना हमारा.
dbms output dot put line s। अगर आपको प्रॉपर वे में मैसेज प्रिंट करना है तो यू कैन प्रिंट लाइक दैट एज 5 8 1 हम 55। If you want to print some message, then you can print that. How to print? How to print? यहाँ पे आप single quotes में you can write sum of first number is equal to concatenation operator है double 5 टाइम 5 8 x1 sum of first 10 numbers is equal to 55, right? Any doubt in loop? समझ में आया? Anyone have any doubt? Normal coding लिखते आएगा। Now a class program we see and then we move forward with the next concept. Now a class program हम लोग देखेंगे। प्रोग्राम का एम दिया है राइट PL/SQL कोड ब्लॉक, ये आपके लैब मैनुअल में भी दिया है। राइट PL/SQL कोड ब्लॉक टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल फॉर अ वैल्यू ऑफ रेडियस वैरिंग फ्रॉम 3 to 7। ये हम लोग को करके आएगा, नॉट एन इशू। एक केस में आपको क्या करना है, स्टोर द रेडियस and the corresponding value of calculated area in a table named as area। आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का and that result you have to store in the table। that result you have to store in the table। तो अभी इसमें अगर मुझे टेबल में रिजल्ट स्टोर करना है तो मुझे सर्कल का रिजल्ट स्टोर करना है रेडियस और एरिया। तो आई हैव टू क्रिएट फर्स्ट वन टेबल ऑफ द two variables, that is one is radius and another is area। So first we create the table and then we write the code। एक टेबल क्रिएट किया हमने, क्रिएट टेबल एरिया, उसमें दो वेरिएबल्स है आर नंबर ऑफ फाइल एंड ए नंबर ऑफ 14,2। ठीक है, दो वेरिएबल यू क्रिएट टू वेरिएबल्स और टू कॉलम्स इन अ टेबल कॉल्ड एज एरिया। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम, यू हैव टू स्टोर द रिजल्ट इन द टेबल। यू हैव टू स्टोर द रिजल्ट इन द टेबल। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू create one program to store the result। So circle underscore area। I just copy the code over here। What is the code? Just go through this code। Do you have any doubt? Then please ask। Declare, हमने एरिया का प्रोग्राम ऑलरेडी लिया है। Declare then one variable phi of type constant, number of 4,2 that is equal to 3.14। आर नंबर ऑफ 5 हमने टेबल में भी सेम साइज रखा है। एरिया का वेरिएबल हमने लिया है ए नंबर ऑफ 14,2। देन बिगिन।
नाउ 3 से 7 तक मुझे प्रिंट करना है, तो आई इनिशियलाइज r इज इक्वल टू 3, देन वाइल का लूप लगाया, r लेस देन इज इक्वल टू 7 एंड लूप. नाउ a इज इक्वल टू पाई इनटू पावर ऑफ r कॉमा 2. ये कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना है टेबल में. तो इंसर्ट इनटू एरिया, टेबल का नाम है ये, वैल्यू. कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, r का वैल्यू और एरिया का वैल्यू. तो r कॉमा a, देन r इज इक्वल टू r प्लस 1 एंड एंड लूप. मैम हाँ बोलो. मैम ये 4,2 और 14,2 क्या है? दैट इज द साइज ऑफ द वेरिएबल. हम लोग वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं, आप कॉलम में हम लोग कैसा डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप. दैट इज डेटा टाइप. नंबर 4,2 मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रहेंगे और टोटल साइज है 4. तो 1 डेसिमल पॉइंट का 1, 2, 3 एंड 4. टोटल साइज इज 4. आउट ऑफ दैट 2 डिजिट्स आर रिजर्व फॉर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट. एंड 14,2 मैम, मतलब टोटल साइज. हाँ, हाँ, दैट इज द डेटा टाइप. ओके जो हमने एसक्यूएल में देखा था. मैम मतलब टोटल नंबर 4 है और डेसिमल के पहले 2, डेसिमल के बाद 2 है. टोटल साइज 4 है, नंबर नहीं, टोटल साइज 4 है. वेरिएबल का साइज जैसा आपका आईएनटी वेरिएबल होता है, इट कैन स्टोर द नंबर्स फ्रॉम, क्या रेंज है आईएनटी का, आईएनटी का रेंज क्या है, आईएनटी का रेंज इसका टाइप आईएनटी 2 बाइट्स है, लेकिन साइज कितना, क्या, कहाँ से कहाँ तक नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं. थ्री सिक्स 5 7 8 2 माइनस समथिंग, ऐसा कुछ तो है रेंज. 3 to 5 6 7, right, something minus 3 to 5 6 8 minus 3 to 5 6 8 to 3 to 5 6 7, right. So same way यहाँ पे हमने क्या रेंज दिया है, 4,2 मीन्स टोटल 4 बिट्स यू कैन स्टोर, जिसमें से आपके नंबर में 2 बिट्स किसके लिए रिजर्व है, फॉर द डेसिमल फ्रैक्शनल पॉइंट एंड 1 बिट इज फॉर द नंबर, इंटीजर नंबर. ठीक है. तो टोटल साइज है, नंबर मैक्सिमम कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा. ठीक है. आर नंबर ऑफ 5 डिजिटेड नंबर यू कैन इंसर्ट. अगर आप इसका साइज नहीं देते हो तो दिस इज अप टू 18 डिजिटेड, सॉरी 18 डिजिटेड नंबर. इफ यू नॉट गिव द साइज देन इट इज अप टू 18 नहीं, 38 डिजिटेड नंबर. आई जस्ट चेक, एक मिनट, आई जस्ट चेक दिस 18 है या 32 38 है. तो आपने साइज नहीं दिया, नंबर ऑफ 38. अगर आपने डेटा टाइप आईएनटी दिया तो आपका रेंज होता है उस वेरिएबल का 38 डिजिटेड नंबर यू कैन इंसर्ट. तो जनरली हम लोग का इतना लेंथ होता नहीं है, दैट्स व्हाई वी जनरली ऑलवेज गिव द साइज. सो कम टू आवर प्रोग्राम एडी एंड क्या था हमारा प्रोग्राम का नाम, सर्कल अंडरस्कोर एरिया.
यहाँ पे हमारा साइज है to store the number 5, to store the area 14,2 and pi का size है 3.14. We know the size of the value, so we can define strict size of that variable. Then यहाँ पे हमने loop रखा है and we save this program and take circle comma area and SQL procedure successfully completed. यहाँ पे हम लोग को कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है. We can't see any result over here. From where we can see the result? From where we can see the result? Table. So select R from table का नाम था हमारा area. आ गया रिजल्ट टेबल में 3, 4, 5, 6, 7 के लिए. मैम थोड़ा नीचे करो ना मैम. प्रोग्राम के लिए मैम वो क्रिएट टेबल के यहाँ पे करो. ये तो नॉर्मल हमने क्रिएट किया. हाँ बस मैम बिल्कुल. थैंक यू मैम. अगर यही प्रोग्राम हम लोग को फॉर लूप से करना रहा तो क्या चेंज आएगा? सेम प्रोग्राम. सपोज आई वांट टू डू विथ फॉर लूप. व्हाट द चेंजेस आई हैव टू डू इन दिस प्रोग्राम? मैम आर की जगह पे आई. आर की जगह पे आई. आई. यस मैम. ओके. और क्या चेंज करना पड़ेगा? मैम वाइल के जगह पे फॉर लिखो और आर रहने दो वैसे ही और खाली रेंज बता दो मतलब 3 to 7. ओके. तो जिसने भी आंसर दिया था, वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग. इट्स नॉट कंपल्सरी कि इट इज ऑलवेज आई. We take I because it is easy for us to find out. It is, you can say that कि काउंटर वेरिएबल है करके. ठीक है. अब यहाँ पे हमने R रखा है तो इट्स ओके, नॉट एन इशू. So here we can just say और वेरिएबल का नाम है R. इन कहाँ से कहाँ तक करना है मुझे? 3 to 7. 3 to 7. Then loop a is equal to pi into power of r comma 2 insert into. यहाँ पे मुझे r plus 1 करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फॉर लूप खुद से वो कर लेता है. एंड देन एंड लूप. 5 save and exit. Circle underscore area is stored in the table. Already 5 rows है. Now more 5 rows get. Start from area. 4, 5, 6, 7. ठीक है. यस मैम.
Any doubt? Yes, any doubt? No, ma'am. So currently I end the meeting for all. You again join. Then I start with the next concept, that is trigger. मैम इसमें इवन ऑड कर सकते हैं क्या टेबल डिस्ट्रीब्यूट करके? टेबल डिस्ट्रीब्यूट करके इवन और मतलब? हाँ मतलब 10 नंबर लेने का, इवन नंबर इवन टेबल में डालने का और ऑड नंबर ऑड टेबल में. हाँ, दो टेबल बनाओगे ना, तो आप जो टेबल में बोलोगे वो टेबल में ऐड हो जाएगा रो जाके. क्योंकि आपने तो सिर्फ क्या एक कमांड ही लिखा हुआ है ना उसमें इंसर्ट इनटू का. तो इट इज अप टू यू, यू कैन डू एनीथिंग. कि सपोज आपने 1 to 100 तक नंबर लिया एंड इवन नंबर शुड बी स्टोर्ड इन द टेबल नेम्ड एज इवन एंड ऑड नंबर शुड बी स्टोर्ड इन द टेबल नेम्ड एज ऑड. तो उसे से भी आप कर सकते हो. मतलब आप क्या करोगे उसमें व्हाइल के लूप में इसका कंडीशन चेक करोगे. व्हाइल का लूप लो या फॉर का लूप लो, उसमें आप इसका कंडीशन चेक करोगे. If it equals to 0, then insert into the table odd values is equal to जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, सपोज I. Else insert into टेबल का नेम आएगा, insert into odd and values और वेरिएबल का नाम. एंड करोगे और फिर एंड लूप करोगे. व्हाइल का लूप है तो वेरिएबल इंक्रीमेंट करोगे, फॉर का लूप है तो इट इज ओके. इंक्रीमेंट का जरूरत नहीं है. इट इज अप टू यू, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ लॉजिक. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि लॉजिक अभी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है. सिंपल प्रोग्राम के लिए ओनली थिंग दैट आई हैव टू एक्सप्लेन इज हाउ टू राइट मींस सिंटैक्स. हाउ टू राइट, व्हाट इज इनपुट स्टेटमेंट, व्हाट इज आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे प्रिंट करना है. टेबल में अगर आई वांट टू इंसर्ट द डेटा, सो हाउ टू इंसर्ट द डेटा इन द टेबल. ठीक है. आपने यूजर से इनपुट लिया सपोज करो एंड यू वांट टू सेव दैट इनपुट इन द टेबल, तो यू कैन डू दैट आल्सो. कि यूजर ने कितनी बार आपका मान लो कि ये चेक किया है, हाउ मेनी टाइम्स यू रन दिस कोड. तो जितनी बार आप रन करोगे जो आउटपुट आएगा उसको टेबल में सेव करते जाओ. सपोज आपने एडिशन का प्रोग्राम किया तो whatever input you taken from the keyboard, that input and output you can store in the table. ठीक है. Any more doubt? Any more doubt? No. I just give you the complete idea of trigger, and by the next lecture we see actually how it works. Now we see that जैसा अभी हम लोग देखते हैं कि you can find out log of your calls, कि आपने कब कब कॉल किया था, कहाँ कॉल किया था. So you can find out कि there is log, you can maintain the log. So someone is there who is going to maintain that log, and in the same way in Oracle you can maintain the log. You can maintain the log, and that log is maintained by using the trigger. So triggers are stored programs. Visible है ना? I just did this. Triggers are stored programs which are automatically executed or fired when some events occur. अब मेन पर्पस क्या है ट्रिगर का? सपोज यू वांट टू मेंटेन द लॉग कि व्हेनेवर someone is going to insert the data or someone is going to delete the data. जैसा मैंने आपको बोला कि you can give the grant on your tables. Now you can give the grant on your tables to some user. Suppose you give the insert grant, suppose you give the delete grant, update grant. But if you want, yes, even then I give the grant, and whoever is make the changes, whatever changes is made by the specific
user. In my table, whatever changes are made by the specific user, if I want that log, then you can apply the trigger on that table. आप क्या करोगे, वो टेबल के साथ एक ट्रिगर अटैच कर दोगे, एंड एज any change is created in that table, that changes are stored in your trigger also. अब आप ट्रिगर में कैसा बना के रखोगे, कैसा सेव करोगे, इट इज अप टू यू. कि सपोज इंसर्ट किया तो इंसर्ट आपका टेबल में भी इंसर्ट होगा और ट्रिगर में भी इंसर्ट होगा कि वॉट एवर रिकॉर्ड गेट इंसर्टेड न्यूली इन योर टेबल एट व्हाट टाइम बाय विच यूजर. सपोज आपने अपडेट किया तो इसका प्रीवियस वैल्यू क्या था, न्यू वैल्यू क्या है. सो दैट लॉग यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द ट्रिगर. सो दैट इज द मेन एम ऑफ द ट्रिगर. एंड इसका एक गुड थिंग क्या है, इट ऑटोमेटिकली गेट एग्जीक्यूटेड. एक बार आपने किसी टेबल के लिए ट्रिगर बना के रख दिया, जैसा ही वो टेबल आपने ओपन किया, सिलेक्ट किया, कुछ भी किया, so that trigger automatically get executed. If any event occur regarding that table, this trigger automatically get executed, or you can say fired. Triggers are in fact written to be executed in response to any of the following events. For example, DML operation, delete, insert or update, a database definition statement, create, alter or drop, and database operation, server error, log on, log off, startup or shutdown. These all operations, for these all operations you can create the trigger. So we can create the trigger, suppose for delete, insert, update. So how to create the trigger? This is before I give you the syntax of trigger and then benefit. So this is the syntax of the trigger. Create or replace trigger. Now create or replace. Replace का मीनिंग क्या है? अगर ऑलरेडी क्रिएटेड ट्रिगर है तो यू कैन रिप्लेस विद द दिस नेम. तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम. किसी भी टेबल पे आप एक ही ट्रिगर बना सकते हो. एक से ज्यादा ट्रिगर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ सिंगल टेबल. क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम. You can give any name to the trigger. Then before, after, instead of. आपको ट्रिगर कब एग्जीक्यूट करना है? बिफोर दिस एक्शन, आफ्टर दिस एक्शन और इंस्टेड ऑफ दिस एक्शन. मीन्स किसी ने अपडेट बोला तो अपडेट की जगह पे कुछ और परफॉर्म होना चाहिए लाइक से. तो जनरली वी आर परफॉर्मिंग बिफोर और आफ्टर. तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम बिफोर और आफ्टर और इंस्टेड ऑफ, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट. insert or update or delete, for which operation you want to apply the trigger. Of column name, कौन से कॉलम नेम पे, स्पेसिफिक कॉलम नेम पे आपको करना होगा तो ऑफ कॉलम नेम. ऑन टेबल नेम, कौन से टेबल पे आपको ट्रिगर बनाना है. तो जनरल कमांड कैसे आता है? क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, सपोज आफ्टर, इंसर्ट on suppose any table name emp. कॉलम नेम देना है तो कॉलम नेम. देन रेफरेंसिंग, ओल्ड एज, न्यू एज, एंड. कैसे आपको ओल्ड एज, तो किस तरह से यू हैव टू सेव दैट वैल्यू फॉर ईच रो. ट्रिगर आपको किसके लिए करना है? फॉर ईच रो यू हैव टू अप्लाई द ट्रिगर. देन व्हेन, कंडीशन, यहाँ पे आपका आएगा कंडीशन. देन आपका नॉर्मल स्टेटमेंट आएगा, दैट इज डिक्लेयर, देन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देन बिगिन, देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आपके बिगिन के ब्लॉक में आते हैं. देन एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट एंड इट. नाउ यहाँ पे इसका पूरा सिंटैक्स दिया हुआ है, वेयर create or replace trigger, trigger name, create or replaces an existing trigger with trigger name, before, after, instead of. This specifies when trigger will be executed. Then instead of clause is used for creating trigger on a view.
insert or update or delete. This specifies DML operation. Off column name specifies the column name that will be updated. On table name, this specifies the name of the table associated with trigger. Referencing old as dot new as n. This allows you to refer an old values for various DML statements such as insert, update and delete. For each row, this specifies row level trigger. The trigger will be executed for each row being affected. Otherwise, the trigger will be executed just once when the SQL statement is executed, which is called table level trigger. When condition provides condition for rows for which the trigger would fire. This clause is valid only for row level trigger. When condition सिर्फ row level trigger के लिए आएगा. ठीक है. Now I know कि ये जितना मैंने अभी बताया इसमें से you will not get anything, right? Right guys? मैंने अभी आपको जो सिंटैक्स बताया और सिंटैक्स एक्सप्लेन किया इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है. That I know because I show you the practically, then only you will get clear कि yes, what is actually trigger and how it works. I know even though you guys are not in front of me, but I know कि आप लोग को कितना समझ में आ सकता है. ठीक है. So not an issue. I will show you how we practically work with the trigger. Before that, we can go for the what are the benefits of trigger. Sometimes there is a theoretical question on trigger because trigger is in your syllabus. So what do you mean by the trigger or explain the trigger? अभी explain trigger ऐसा question आता है तो आपको क्या explain करना है उसमें कि what is the trigger? Trigger क्या है? It is a stored program which automatically executed or fired when some event occur. Now triggers किस पे apply हो सकता है? What are the benefits of trigger and syntax of trigger? So triggers can be written for the following purpose: generating some derived column values automatically, enforcing referential integrity, event logging and storing information on table access, auditing purpose, synchronous replication of tables, imposing security authorizations, and preventing invalid transactions. Invalid transactions you can prevent by using the trigger. कि suppose for example आपको आपके टेबल पे अपडेट अलाउड नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? टेबल पे ट्रिगर अप्लाई कर सकते हो. एक तो ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, ग्रांट वाला ऑप्शन रखोगे, लेकिन आपको टेबल ग्रांट भी नहीं देना है, लेकिन आपको टेबल पे अपडेट भी अलाउ नहीं करना है. So you can apply the trigger on that table. So it will prevent the invalid transaction. Security authorization. You can provide security to your table because whatever changes are made by someone, you can find out or you can maintain the log. Yes, which user makes what changes in your database. At the same time, you can prevent for using the invalid transaction कि आपको अपडेट अलाउड नहीं करना है या ट्रिगर कौन से टाइम के बीच में एक्टिवेट होना चाहिए. सो यू कैन गिव ऑल दिस थिंग्स इन द ट्रिगर. तो आपको व्हाट यू मीन बाय ट्रिगर किस पे अप्लाई कर सकते हो, बेनिफिट क्या है ट्रिगर का, उसका सिंटैक्स क्या है और ये सारा मीनिंग. दिस यू हैव ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन इन द थ्योरी पेपर इफ बाय द वे यू आर गोइंग टू राइट द थ्योरी पेपर. ठीक है. विच एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन करना है थ्योरी पेपर में. नाउ अब थ्योरी पेपर में अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना है तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन. नाउ हो गया कि हाउ वी राइट द ट्रिगर ऑन द टेबल. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्रिएट द टेबल, देन वी हैव टू क्रिएट द ट्रिगर. तो वो बाय द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज अभी के केस में 12:27 हो गया है, 3 मिनट में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो बाय द नेक्स्ट लेक्चर वी फिनिश विद द ट्रिगर एंड अगर टाइम बचता है तो कर्सर आल्सो, अदरवाइज बाय दिस वी फिनिश विद द ट्रिगर एंड कर्सर. So by this week we finish with the module
4। इस वीक में हमारा मॉड्यूल 4 खत्म हो जाएगा. बाय द नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट विथ मॉड्यूल 3, दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा. ठीक है. ड्राइव का मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक आपको भेजा था. एवरीवन हैव एक्सेसिबल दैट? Everyone has access of that Google Yes, Classroom? ma'am. Okay. And I send you the database lab manual also. लैब मैनुअल मैंने आपको इस पे भेजा है व्हाट्सएप पे. यस मैम. तो आप लोगों ने स्टार्ट किया कुछ अपलोड करने का? मैम अपलोड कहाँ पे करना है? गूगल क्लासरूम में. ओके मैम. आसुम आप लोगों ने बोला ना कि इट इज मोर कंफर्टेबल, क्लासरूम इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू. गूगल क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट्स अपलोड करना इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू. यस So, मैम. you have lab manual, you start with practicals, you have screenshots of your practical, so वो complete करके start uploading the practicals also. ठीक है. ठीक है. So for today, I stop here, and by the next lecture we start with Twitter. Anyone is Ma'am? remaining? हाँ बोलो.